Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class. Chapter number 2, atomic structure. The topics of today's lecture are defects of Bohr theory and hydrogen spectrum. Today we have the 7th lecture of this chapter. Let's start from the defects of Bohr atomic model. The first defect of the Bohr atomic model is Bohr theory cannot explain the origin of the spectrum of multi-electron or poly-electron system like helium, which containing the 2 electrons, lithium atomic number is 3 and beryllium atomic number is 4. Students, if you remember when we discussing the Bohr atomic model postulates, I told you that Bohr actually stated only those atoms which containing only one electron, or you can say Bohr actually stated those electrons which are the univalent. Okay, so that is the first defect of the Bohr atomic model, that it cannot explain those atoms which are the multi-electrons, which containing the multi-electrons. Number 2, Bohr suggested the circular orbit of electrons around the nucleus of hydrogen atom, but it is proof that the motion of the electrons around the nucleus take place in the 3 dimension. Third point, in Bohr atom, the electrons are moving in orbit with specific velocity in specific radii. That is according to the Bohr, that electrons are moving with specific velocity in specific radii. But according to the Heisenberg principle, which was given by a scientist, his name was the Heisenberg uncertainty principle. According to him, that both exact position and the velocity of electron cannot be measured simultaneously. According to the Heisenberg, if we calculate the exact position of the electron, then its velocity became uncertain, and if we calculate the exact velocity of electron, then its position become the uncertain. It is not possible that we calculate both position and velocity at a time or simultaneously. Okay, in order to solve this problem of hydrogen atom, a scientist, his name was the Schrödinger, he gave a wave equation, and according to him, the probability of the finding electron can be as certain, that is the 0.053 nanometer. According to him, that electron, so according to the Schrödinger, that the probability of the finding electron can be as certain, that is the distance about the 0.053 nanometer from the nucleus. Bohr theory does not explain the Zeeman and Stark effect. What is the Zeeman effect? When the excited atom of the hydrogen giving atomic emission spectrum is placed in the magnetic field, its spectral lines further split up into the closed space line. Okay, that is known as Zeeman effect. And the Stark effect, when the excited atom of hydrogen giving the atomic emission spectrum is placed in the electrical field, its spectral lines further split up into the closed space line. अब ये क्लोज स्पेस लाइन कौन सी होती हैं, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम स्टडी करेंगे. बट यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो ये कि बॉहर ने जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट दोनों को एक्सप्लेन नहीं किया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट? दैट इज ओनली द फील्ड. इन जीमन इफेक्ट we study the in magnetic field, and in Stark effect we study the atomic emission in the electric field. Okay, now about these spectral lines किस तरह से split होती हैं, ये अब हम next topic में पढ़ेंगे, that is the hydrogen spectrum. Students, when hydrogen atom is enclosed in a container and heated, it emits radiations, and these radiations are actually emitted due to the excitation and de-excitation of electrons of hydrogen. When these excited electrons, let me show you, when these excited electrons being unstable and try to come back to one of the lower energy levels, and the electrons may come to the lowest energy level. In this way they emit the energy which they had absorbed. Okay, if you remember in our last lecture I told you about these excitation and de-excitation. When electron absorb the energy, then it jump from the lower energy level to the higher energy level. ठीक है, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाते हैं, और फिर उसके बाद एंड आफ्टर दैट वापस जब आते हैं तो वापस आते हुए उसी एनर्जी को जो एब्जॉर्ब किया है उसको इमिट करते हैं. ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट हमें स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आती हैं. Now the emission spectrum of atomic hydrogen has been divided into the number of spectral series with wavelength given by the Rydberg formula. Rydberg is the name of scientist.
which give a formula which we will study in the next slide. These observed spectral lines are due to the electron making the transition between the two energy level in atom. So students, as I was telling you about that, electron may come to the lowest energy level. In this way they emit the energy which they had absorbed. Okay, if we talk about the Lemon series is produced when the electron jump from the second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit, or you can say from infinity jump to the first orbit, that is the n is equal to 1. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, चाहे इन्फिनिटी से, दैट इज़ द इन्फिनिटी से, या किसी भी हाई एनर्जी लेवल से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट तक आता है, तो इसको एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम लेमन था, उसने स्टडी किया था, और उसके नाम पे, उस साइंटिस्ट के नाम पे इसको हम लेमन सीरीज़ कहते हैं. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ में ये सीरीज़ हमें शो होती हैं. एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम बामर था. अकॉर्डिंग टू द बामर सीरीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट, यू कैन से फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट, इट स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन थर्ड से लेकर इन्फिनिटी तक किसी भी ऑर्बिट से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आता है, ओके, तो हमारे पास जो सीरीज़ आती है दैट इज़ नोन एज द Balmer series. And if electron jump from the you can say from the fourth orbit, fifth orbit, sixth orbit, or from infinity to the which orbit, third orbit. अगर हमारे पास किसी भी ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आता है तो हमारे पास जो सीरीज़ आती है दैट इज़ नोन एज द पास्चन सीरीज़. आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो हमें रीजन नज़र आता है दैट इज़ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन में भी नज़र आता है. ये जो हमारे पास बामर सीरीज़ है वो हमारे पास विजिबल रीजन में होता है. पास्चन सीरीज़ जो हमारे पास है वो नियर इंफ्रारेड में होती है. ब्रैकेट में हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फिफ्थ से, सिक्स से और इन्फिनिटी से जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में आता है तो उसको हम ब्रैकेट सीरीज़ कहते हैं. एंड इफ़ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द एनी ऑर्बिट अबव फ्रॉम द फिफ्थ ऑर्बिट, 6, 7 और इन्फिनिटी अगर जंप करके वापस आता है फिफ्थ ऑर्बिट में, तो हमारे पास जो सीरीज़ शो होती है उसको हम कहते हैं पी फंड सीरीज़. आई एम श्योर स्टूडेंट आपको ये बात नहीं समझ आ गई होगी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं. ओके, अब जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, और यू कैन से दैट द हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू विच इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेटेड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो अब जब ये हमारे पास ये वापस आते हैं लोअर एनर्जी लेवल पे, तो लोअर एनर्जी में लेवल पे आते हुए अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द लेमन सीरीज़. अगर हमारे पास सेकंड में आते हैं दैट इज़ द बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज़. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट वेव लेंथ की हमें सीरीज़ शो होती हैं विच आर नोन एज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. The spectral lines are grouped into series. Lines are named sequentially starting from the longest wavelength or you can say the lowest frequency of the series. For example, if you talk about the Lehman series, तो Lehman series हमारे पास उसका N1 known as the ground state. Let me show you that is the ground state. और अगर हम बात करते हैं N2 की, that is known as the N2, और ये एक्साइटेड स्टेट हमारे पास कौन सी होती है, N2 जो होती है हमारे पास दैट इज़ द एक्साइटेड स्टेट. अब अगर हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके आ रहा है कहीं से भी नंबर 1 ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो हमारे पास सीरीज़ लेमन सीरीज़ होगी. इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास जंप करके किसी भी ऑर्बिट से नंबर 2 पे आ रहा है दैट इज़ नोन एज बामर. तो हमारे पास पास्चन सीरीज़ का N1 क्या होगा, ग्राउंड सीरीज़ क्या होगी, दैट इज़ द 3. ब्रैकेट सीरीज़ का N1 दैट इज़ द ग्राउंड सीरीज़, ग्राउंड स्टेट हमारे पास 4 होती है. एंड पी फन की हमारे पास ग्राउंड स्टेट क्या होती है, दैट इज़ द 5. ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है और यही चीज़ आपको यहाँ डायग्राम में भी शो की गई है. That is the Rydberg constant, or you can say that is the Rydberg formula. If you remember when we derive the derivations of the wave number, तो आपको यहाँ पे हमने ये डेरिवेशन में आपको Rydberg constant भी बताया था. Rydberg constant ये constant वैल्यू होती है, यहाँ पे हमने वेव नंबर कैलकुलेट किया था. तो अगर हमें किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की अगर हमें कहा जाए कि वेव नंबर कैलकुलेट करें और हमें एक ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट और यू कैन से हमें ऑर्बिट की वैल्यू दे दी जाए तो हम ईजिली उसका वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. विद दिस इक्वेशन बोहर वॉज एबल टू प्रेडिक्ट द वेव लेंथ
wavelength in the hydrogen emission spectrum and the electron transition changes of the energy level that occur in the hydrogen atom. Okay, तो यहाँ से हम लोग किसी भी एटम का wavelength और wave number हम calculate कर सकते हैं. Okay, now we will state them one by one. First is the Lehman series. लेमन सीरीज़ में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर आपको वेव नंबर कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे. आपके पास लेमन सीरीज़ का एन लेट मी शो यू. लेमन सीरीज़ का आपके पास n1 जो होता है दैट इज़ 1, और हमारे पास लेमन सीरीज़ का n2 जो होता है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक, अप टू द इन्फिनिटी. ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि लेमन सीरीज़ का यू कैलकुलेट द फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करें, लेमन सीरीज़ का फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे. यू हैव द कांस्टेंट वैल्यू रेडबर्ग की, वो आपने यहाँ पे पुट कर ली. आपके पास n1 की वैल्यू जो है दैट इज़ 1, आपने यहाँ पे पुट कर लिया. n2 अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट लाइन, देन यू नो वेरी वेल कि हमारे पास लेमन सीरीज़ की जो n1 है वो तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट हो गया. तो हमारे पास n2 कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4. ठीक है, तो n2 हमारे पास सेकेंड, इसकी वैल्यू को पुट करें तो हम वेव नंबर जो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए लेमन सीरीज़ का सेकेंड लाइन कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पर n1 ऑब्वियसली हमेशा हमारे पास लेमन सीरीज़ का n1 हमेशा हमारे पास 1 ही होगा. ठीक है, फॉर सेकेंड लाइन n2 की जगह पे हमने 3 वैल्यू पुट कर दी, कांस्टेंट वैल्यू पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया. सेम फॉर द थर्ड लाइन, सेम फॉर द लिमिटिंग लाइन. इस तरह से हम लेमन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन अगर जम करके वापस आ रहा है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उसका वेव नंबर. नाउ कम टू द बैमर सीरीज़. बैमर सीरीज़ में मैंने आपसे क्या कहा था, इन दिस सीरीज़ इलेक्ट्रॉन्स फॉल बैक टू द n2 दैट इज़ द सेकेंड ऑर्बिट, और ये n2 जो है दैट इज़ एक्चुअली द n1. बैमर सीरीज़ का n1 जो है वो स्टार्ट होता है 2 से, और n2 जो होता है इट स्टार्ट फ्रॉम द 3, 4, 5 और अप टू द इन्फिनिटी. ठीक है, तो अगर हमें फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो फर्स्ट लाइन ऑब्वियसली हमारे पास स्टार्ट होगा कहाँ से, फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट. तो हमारे पास जो वेव नंबर अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करें, n1 और n2 की वैल्यू को पुट करें, हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ कम टू द पास्टन सीरीज़. स्टूडेंट्स आई एम श्योर अभी आपको पता होगा पास्टन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन, पास्टन सीरीज़ का n1 हमारे पास क्या होता है दैट इज़ द 3, और पास्टन सीरीज़ का n2 हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से, 4, 5 एंड अप टू द इन्फिनिटी. तो अगर हमसे फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 4. आप वैल्यूज़ को पुट करें, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे. फॉर सेकेंड लाइन सेम यू विल कैलकुलेट, एंड फॉर द लिमिटिंग आप वहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू रखेंगे या फिर आपको जो वैल्यू दी जाएगी वो आप रखेंगे. नाउ कम टू द ब्रैकेट सीरीज़. इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर लेवल फॉल बैक टू द फोर्थ ऑर्बिट. जब फोर्थ ऑर्बिट है तो हमारे पास फर्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से, सेकेंड लाइन स्टार्ट होगा हमारे पास 6 से, और लिमिटिंग लाइन हमारे पास होगी इन्फिनिटी. ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ कम टू द पी फंड सीरीज़. पी फंड सीरीज़ हमारे पास जब वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल फॉल बैक टू द n इज इक्वल टू 5 पे आएगा तो हमारे पास n की वैल्यू 4 होगी एंड 2 की वैल्यू हमारे पास 5 होगी. तो हमारे पास वेव नंबर को अगर फार्मूले के अंदर, रेडबर्ग फार्मूले के अंदर हम वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. फॉर सेकेंड लाइन हमारे पास n2 6 हो जाएगा, और वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको अगर किसी भी सीरीज़ का अगर आपको कहा जाए कि कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, जिस भी लाइन का कहा जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास n1 की वैल्यू क्या होगी. लेट मी रिकॉल यू कि हमारे पास लेमन सीरीज़ का n1 क्या होता है दैट इज़ 1. फॉर द बामर सीरीज़ n1 हमारे पास क्या होता है दैट इज़ 2. फॉर द पास्टन सीरीज़ हमारे पास n1 क्या होता है दैट इज़ 3. फॉर द ब्रैकेट सीरीज़ n1 हमारे पास होता है 4. एंड फॉर द पी फंड सीरीज़ हमारे पास n1 होता है n1 यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक 5 यहाँ गलत लिखा हुआ है, दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द 5, और ये हमारे पास हो जाएगा 6. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास जो ब्रैकेट है उसका n1 हमारे पास 4 है. यहाँ थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, ये हमारे पास 5 होगा, तो इसका हमारे पास स्टार्टिंग जो होता है n2 जो होता है दैट इज़ 6. Okay students, now your home assignment is revision of the lecture. Do practice the example 2.7 of your book.
textbook. Thank you so much. Wish you all the best. Allah Hafiz.